नवरात्रि पर्व के विषय हम प्रतिदिन और गहराई से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट हाउ टू अंडरस्टैंड नवरात्रि पूजा, नवरात्रि फेस्टिवल. Every day we are trying more and more because it has been proved that we are not able to practice clearly. Therefore, there is problem. यह सत्य हो चुका है कि नवरात्रि पर्व का हम जो एक मनाते हैं वो अधूरा है, इसे तो समस्या है. उसको समझने के पहले ये आवश्यक है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि जब नवरात्रि पर्व मनाते हैं तो इसमें दो प्रकार की चीजें, 9 प्रकार का अंधकार है. उसमें एक अंधकार है जिसको काम कहते हैं. एक काम है, क्रोध है, राग, द्वेष, मोह जिसको मद कहते हैं. फिर अपने संस्कार, पुरानी आदतें जो छूटती नहीं है, अपना अहंकार के हम आप दो हैं, और चित्त है हर चीजों को समेटने की ये चीज हमारे पास है जिसको अज्ञानता कहते हैं. जो चीज जहां वही ठीक है. तो 9 प्रकार के जो अंधकार है, डार्कनेस है, ये समस्या बनी हुई है. जब 9 प्रकार का अंधकार दिखाई पड़े तो हमें अभ्यास क्या करना चाहिए? 9 का. 9 न कहते हैं कैवल्य को, कैवल्य को न कहते. तो आप होली साइंस देखेंगे आपको मिलेगा कैवल्य का अर्थ है आइसोलेशन. आइसोलेशन में आइसो का अर्थ है इक्वल. और लेसन का अर्थ है मूवमेंट. Equal movement, what does it mean? If you are able to move clockwise, then you must be able to move anti-clockwise. If you are going forward, you should learn how to go backward. If you are going right, you have to learn how to go left. This is called the movement. Equal movement in all direction. This is called the isolation. This is called the cavalry. Aim of life is cavalry. Cavalry means then if we realize when we have equal movement, then we have equal attention, equal awareness, equal love for all creatures. That is the aim of human life. In order to understand it, we have to understand what is dharma, artha, kama, moksha. Because in this what is called the calm, this is called the darkness. From this calm, next darkness appear, we call it krodh. From krodh, which is called the anger, next darkness appears, attachment, aversion. I use the power of anger, something I want to get it. If I am not able to get, then I will fight. That is called the greed, attachment, aversion. And this fighting mechanism we get from the krodh, anger. After that we get illusion, we fight because we realize when I will get this, I will be happy. This is not true. When I have this kind of illusion, and when I try the best and I got it, then I have pride that I am great. I am greater than you. Then we create a habit, this kind of life, that is called sanskar. This all things together brings realization, I and God are two. That is called the ignorance. These 9 darkness, this is the greatest problem in our life. When you have this 9 darkness, you have to practice now, na and the va. Va means already I have told, this is the circle. It means omnipresence. Omnipresence means infinite. This is called vertical line represents infinite. This is infinite. Means when you have the life, equal movement, you are able to go front, then you have to go back, up then down, in then out, clockwise then anti-clockwise, counterclockwise.
going right, you should be able to go left. Therefore, moment in all dimension, that is our aim of life. Moment you get it, then everything is done. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में समझने का प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं, जिस पूरे राष्ट्र में ये मनाया जा रहा पर्व जो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 9 प्रकार के डार्कनेस को खत्म होता है, जिसको नवरात्रि पर्व कहते हैं, नवरात्रि पूजा कहते हैं। तो 9 प्रकार का अंधकार क्या है? एक है काम, और काम की वजह से ही हमें शक्ति आती है, शक्ति की वजह से ही हम एंगर गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्या है? अपनी शक्ति का उपयोग करना, किस लिए? कोई चीज लेने के लिए या छोड़ने के लिए। तो काम से क्रोध हुआ, क्रोध से राग द्वेष हुआ, हम लेंगे या छोड़ेंगे। अगर हम कर लेंगे, जो लेना चाहे लिए छोड़ दिए, तो उसके बाद इल्यूजन होता है, अरे वाह अब तो सब कुछ मिल गया। इल्यूजन के बाद से मद होता, प्राइड होता, अरे हम तो ग्रेट है। ये सब करते करते एक आदत हो जाती है, संस्कार, तो एक अलग समस्या है। संस्कार हो जाने से ये पता चलता है हम और परमात्मा 2 हैं, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये सब मिलकर के इसको अज्ञानता कहते हैं। इस तरह से 9 प्रकार का अंधकार है, जिसको काम कहते हैं क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद, संस्कार, अहंकार, जीव भाव की हमारे भगवान बीच में दूरी है। फिर अविद्या, ज्ञानता, ये 9 जो अंधकार है, इससे हमें मुक्त होना है। कैसे मुक्त होंगे? आसान तरीका है, क्रिया योग ध्यान जो भी आता है इसको करते जाइए। कौन सा क्रिया योग ध्यान? जो लाहिड़ी महाशय के द्वारा मिला है, लाहिड़ी महाशय के द्वारा जो क्रिया योग ध्यान मिला है, उसी को ज्ञानता सामयिक तेश्वरगिरी होली साइंस में लिखे हैं। उसी का प्रचार प्रसार परमहंस से योगानंद ने पूरे जीवन किया है, और उसी के प्रभाव, उसको करने से कैसे लोग रूपांतरित होते हैं। क्रिया ध्यान का विस्तार का जो प्रभाव है योगी कथामृत में है। उसके बारे में और कुछ पढ़ना है तो लेसन्स लिखे, योगदा पाठ और सारे लेसन। इसका और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो काम को आप समझिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ क्या है मालूम है? कि आप वहां बैठे हैं, आपके रूप में मैं बैठा हूं, ये अनुभव हो। मैं यहाँ हूं, आप हमारे रूप में यहाँ पर हैं। ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी के रूप में हैं, पृथ्वी हमारे रूप में है। ब्रह्मांड की सारी रचनाएं एक दूसरे के स्वरूप को व्यक्त करती हैं। हम सबके बीच में दूरी समाप्त है, हम सब एक ही हैं। इस अनुभूति को कैवल्य कहते हैं। और जब सब अपना ही रूप है, तो फिर अपने को तो हम नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते नहीं। कैसे अपनी सुरक्षा करें, यही शिक्षा है। अपनी सुरक्षा करने का अर्थ है सभी मानव की सुरक्षा, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जितनी रचनाएं सभी की। इस कैवल्य को पाने का एक ही तरीका है जो होली साइंस में लिखा है। ताकि फिर से हम लोग इसको समझें, काम को फिर से समझे। काम है क्या? काम कहते हैं जब हमारा मन और इंद्रियां मिल करके किसी वस्तु को पकड़ते हैं। मन इंद्रियों के माध्यम से किसी भी वस्तु को पकड़ा, जैसे जीवा के माध्यम से कोई खाने वाली चीज को हमने पकड़ा, तो खाने वाली चीज की अनुभूति क्या की है? वही अनुभूति काम है। जैसे हम ऑरेंज या नींबू या आम या कोई फल, कुछ भी हमने इसको लिया, मुंह में रखा, जीवा से स्वाद की अनुभूति किया, तो मन जीवा पर के माध्यम से उस भोज्य पदार्थ की जो अनुभूति हुई, वही है काम। तो हर चीज पूरे पृथ्वी पर अनेक रूपों में व्यक्त होती है। अतीत वर्तमान में है, और वर्तमान अतीत में था। भविष्य भी वर्तमान में है, और वर्तमान भविष्य में भी है। जिसको समझने के लिए, चूंकि अपने इस पृथ्वी पर हम महाभारत तो पढ़ ही चुके हैं। बी आर चोपड़ा का हम लोगों ने सीरियल देखा है महाभारत का,
तो उसमें धृतराष्ट्र के बारे में सुने हैं, दुर्योधन के बारे में सुने हैं। सारी महाभारत की जड़ दुर्योधन और धृतराष्ट्र। दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र सब जो कुछ करते थे उल्टा पुल्टा दुर्योधन के कहने पर, और दोनों के जुड़ने से हुआ क्या, हस्तिनापुर में हाहाकार मचा। ऐसे अपने अंदर जो अतीत था अब भी है, जो मन है अंधा है, जब से पैदा हुए तभी से अंधा है। इसे पैदा होता हुआ बच्चे के पास जलती हुई आग ले जाइए, पकड़ लेगा, उसको पता नहीं जल जाएंगे। एक सांप ले जाइए, इसे चल रहा है, बच्चा पकड़ लेगा, उसको नहीं पता कि कोबरा है ये। तो पैदा होते ही मन अंधा है। ऐसे महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। तो धृतराष्ट्र अंधे गंधारी के साथ थे, अपना मन गंध आदि इंद्रियों के साथ है। अपने अंदर की इंद्रियां ये गंधारी का रूप, मन धृतराष्ट्र का रूप। इंद्रियां और मन मिलकर के जो विषय की प्रथम अनुभूति किया, वही अनुभूति काम तत्व है दुर्योधन। और अगर दुर्योधन बलवान हो गया तो मन को पकड़ लेता है। जैसे एग्जाम्पल डायबिटीज है, जो प्रोसेस्ड स्वीट खाना मना होता है डायबिटीज में। जैसे रसगुल्ला है, व्हाइट शुगर है, ये सब है, चीनी है, मिठाई है, ये खाना मना होता है। लेकिन जो स्मृति है, अरे वाह रसगुल्ला कितना अच्छा, गुलाब जामुन कितनी अच्छी, आइसक्रीम कितनी अच्छी, वो मिठाई कितनी अच्छी, हम तो खाएंगे। तो जो स्मृति है मीठे के स्वाद के दुर्योधन है, उसने पकड़ लिया मन को। मन ने कहा हाथों से उठा के मुंह में डालो। हाथों से उठा के मिठाई मुंह में डाली गई और इंद्रियों को खाना पड़ेगा। इस तरह से याद रखिए कि जब उस विषय वस्तु की अनुभूति मन को पकड़ लेती है, उसकी आवश्यकता है, डायबिटीज होगी, ठीक है, इंसुलिन लेंगे, दवा खा लेंगे, लेकिन हम खाएंगे जरूर। फिर होता क्या कि सिर से पैर की उंगली तक ये रूप है क्या, इंजीनियर है क्या पता। हाथ से इंजीनियर का ज्ञान हम व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, हाथ तो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। हाथ ना होता तो इंजीनियर का ज्ञान कैसे व्यक्त होता। हम सर्जन हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, हम खेतों की सेवा, पेड़ों की सेवा करते, कैसे करते हैं, बिना हाथ के माध्यम से कर नहीं पाएंगे। इसका अर्थ है हाथ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जिसका बड़ा इम्पोर्टेंट हो कर्म करने में, तो सिर से पैर की उंगली तक इसका नामकरण उसी के ऊपर होना चाहिए। इसे सिर से पैर की उंगली तक हस्तिनापुर है। इसमें जो काम तत्व है, जब मन को पकड़ लेता है तो हस्तिनापुर का तहस नहस होने लगता है। वही गठिया हुई, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, लीवर की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, आंख कान की प्रॉब्लम हुई, सब प्रॉब्लम ही होने लगी। तो करें क्या भाई, इससे मुक्ति पाना है। इससे मुक्ति पाए तो क्या करें, नवरात्रि पूजा करिए। तो सारे अंधकार है ये, मन का वश में होना काम के, दुर्योधन के, सबसे बड़ा अंधकार यही है। और इस तरीके से तो पूरा इस सिर से पैर कर तक तहस नहस हो जाएगा। तब करना क्या है, ठीक है, जो काम है इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। कैसे, क्रोध क्या है, जब गुस्सा आता है तो मुट्ठी बांधते हैं कि नहीं। जो अपने मांसपेशियों में कड़ापन शक्ति, इसी को क्रोध कहते हैं। तो काम से क्रोध की उत्पत्ति हुई। अगर काम ने मन को वश में कर लिया तो इस क्रोध के द्वारा मर्डर करेंगे, हम जानवर मारेंगे, पेड़ काटेंगे, न जाने क्या क्या अत्याचार करेंगे। तो हमें करना क्या है, क्रिया योग ध्यान करके काम हमारे वश में हो, मन हमारे वश में हो, तो उससे जो शक्ति मिलती है काम से, खाने पीने पर जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति हमारे बस में होगी। तो शक्ति का उपयोग करेंगे हम सेवा करने में। मानव की सेवा, पेड़ की सेवा, जानवर की सेवा, ये है। तो क्रिया योग ध्यान करने से काम अपने वश में हो जाता है। काम के वश में होने से मन अपने वश में हो जाता है। काम और मन के वश में होने से अपनी जो शक्ति है, जो खाने पीने शक्ति मिलती है, उसका सदुपयोग होता है।
उसका सदुपयोग करके सेवा भाव करते हैं। जैसे जैसे सेवा का विस्तार होता है, सिर से पैर की उंगली तक इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, फिर बीमारियां आती नहीं। What is the important point? Now this calm is called the lust. How lust is created? Inside there is an element which we call mind, man. Mind is blind from the birth. Because suppose that mind is there and newborn baby is there, you take burning fire in front of the newborn baby. Baby will hold it. Baby does not have this knowledge that this is the burning fire, it is dangerous. No. Because mind in baby is blind from the birth. All right? But this mind cannot work without senses. If there is burning fire, mind wants to hold it, then mind will take a help of arm. A snake is going, for example, let us cobra. Now mind is saying, oh, it is very good. The mind wants to hold it. The mind will tell, okay, leg you have to walk. Mind will order the arms, you have to get it. But mind does not know this is king cobra, dangerous snake. If mind is blind from the birth, that's the greatest problem in our life. And mind cannot live without senses. Mind is living with the sense organ. Sense organ means senses, 5 sense organs, sense of hearing, touch, vision, taste, smell. Let us think of taste. But everybody we love the food. When mind is having some food on the tongue, what experience you will have? You have orange in the mouth, or apple, or mango, or anything else, any sweet, then mind experience the presence of object of senses which is present on the tongue. That perception is called the taste, that is called the calm. In English we call it lust. When we are putting the food on inside mouth, then with the help of tongue, mind is experiencing something which is called the taste. And by repeated practice of the taste and by repeated practice of consumption of the food, we get strength. That strength is called the anger. We call it krodh. This krodh is, suppose that, okay, all right, I'm eating something, now I want to keep it, save it for me, then I need some power. After eating food, what I got power, that power is working the muscles, and I help, I start walking, I get the food with the help of arms, I took it, I save it, I put in the fridge. Because of the calm, because of the lust element, we get power. That power is called the anger. Anger means A-N-G-E-R, generation. G-E means generation, what we are going to generate. R means infinite power of senses and mind. Therefore, by perceiving the thirst, by experiencing presence of thirst, we get the power. And if lust controls the mind, then what is the lust? The memory of the taste. Suppose we got diabetes mellitus, then we have not to eat sweet, we have not to eat ice cream. But the mind is thinking of sweet. Sweet taste is holding mind attention. Mind had great desire to eat the sweet. But sweet is not good. All right, but I will eat sweet, I will discover medicine.
I have started taking insulin or some medicine, all right, then what's problem? Because lust when controls the mind, then this head to toes have biggest problem. When you practice yoga meditation, then we control lust, we control taste, we control all sense organs, we control mind and wisdom. Then what we get a lot of power which we call anger. We use a lot of power to serve human being, animal kingdom, plant kingdom, everything. That is the aim of life. Therefore, by practicing yoga meditation, we are able to control our sense organs, we are able to control our mind and intellect, we are able to store a lot of energy, lot of life force. By using that life force, we have to serve. Then our aim of human life is to serve and serve and serve. This is called practicing Navaratri Puja. When we have a Ratri darkness, how to practice to get rid of darkness, that is the practice yoga meditation. When you feel head to toes, this head to toes, what you feel? When you have true idea, true thought, true concept behind head to toes perception, that what we feel is immortality, nothing else. Immortal consciousness we feel in so many dimensions. We have named heaviness, lightness, comfort, discomfort, heat and cold, so many names. But try to appreciate all dimensions of immortality. Then you will realize you have full control over sense organ, over organ of action, you have full control of mind and wisdom. You feel peace and joy. When you have full control, then we express our nature. What is our nature? To serve. Therefore, in the short, practicing Kriya Yoga meditation is called a real celebration of Navaratri festival. ये समझ लेना चाहिए कि क्रिया का अभ्यास करना ही नवरात्रि की सच्ची पूजा है। बाकी करते रहिए, उससे कुछ होता नहीं, सब बच्चों के खेल की तरह है। तब भी अगर क्रिया नहीं कर पाते तो बच्चों का खेल वाला छोड़िए मत। जो कुछ आप रिचुअल करते रहिए। समय आएगा कि क्रिया योग आपको मिलेगा। जब क्रिया योग मिलेगा तब रिचुअल की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी बच्चे, हमको कार बनाना नहीं आता है तो कम से कम कार को खरीद तो लाई, उसको खेले तो हम। अब कार बनाना भी नहीं आता, कार का खिलौना भी न मिले, तब तो बड़ा गलत है कि नहीं। तीसरे जो रिचुअल्स है आवश्यक है ये उनके लिए जो क्रिया योग नहीं सीख पाए, जो क्रिया योग नहीं सीख पाए हैं, वो सारे जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, जो रिचुअल्स है, उनको करना चाहिए। Moment you learn Kriya Yoga, that's the all right. If you are not knowing Kriya Yoga, you are not practicing the rituals, very important. What is rituals? I am Christian. I have the cross. This cross will help me. It means then decide you have not to go hospital. Try to hang the cross and decide you do not need hospital. You have cross, you do not need food, you have power. But we cannot demonstrate it. Therefore, holding cross is called ritual. Then I have to hold cross or not yet, you must hold it. You must practice ritual because you do not know what is the teaching of Jesus Christ, I and God are one. That is called the Kriya Yoga meditation. Until you learn Kriya Yoga meditation, ritual is very important for all human beings. Suppose I do not know that I am pure. And you are coming, putting the water, baptizing me, oh, pavitram, pavitram, pavitram. Oh, that's very good because I am pure, I do not know it. At least in one moment, you are reciting pavitram, pavitram, that is good. If I sprinkling water on your body, pavitram, pavitram, that is good. But by doing this, you will not experience that you are pavitra. You are pure. You have to practice Kriya Yoga. Until you know the Kriya Yoga, practice presence of purity. You must try to practice this pavitram, pavitram, that is all right. Therefore, do not criticize any kind of rituals, any kind of practices. Try to wait. Your time will come to learn Kriya Yoga meditation. Moment you start learning Kriya Yoga meditation, then you do not need any ritual practice. आप लोग घबराइए मत, जो भी आप रिचुअल अभ्यास करते रहिए।
एक समय आएगा कि आपको क्रिया योग मिलेगा, और जब क्रिया योग मिल जाता है तब किसी रिचुअल की आवश्यकता नहीं रहती। ये है आज का क्लास। दिस इज फॉर टुडे। लेट अस प्रैक्टिस feel presence of head to toes. It is presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality, and within there exist all things. 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम अपने अस्तित्व की अनुभूति करें। जो भी अपने अस्तित्व की अनुभूति हम कर रहे हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है। संपूर्ण अस्तित्व इसी में विराजमान है। शक्ति, ज्ञान, शांति, सब कुछ। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। Now we will sit, बैठे, आंखें खोले, open eyes.